everyone, welcome to our Robotic Career Academy. I am glad to be here with you all today. So my name is Kunal Janvid, member of RC Academy. Now let's get started talking about robots. Before I start, have you ever heard that how the robots are work on making any type of robot? So अगर नहीं किया है तो no problem. I'll teach you. I'll tell you about everything about the robots and specification also. So during my talk this morning, I'll provide you some background of robots and why it is important to us. So guys, today I will be covered 5 to 6 topic which is definitely help you in future. So I'm going to represent all type of robots like these. This obstacle avoiding robot and this Android control robot. And most probably more robots are like line follower robots and home automation robots. These are in our syllabus, and we have a R&D department where we are working on the blind stick, drones and many of them. So then I share you some important specification of these type of robots. Now moving forward, I'm telling you how the robots are connected with human beings, or human beings are connected with robots. So on this board you can see human beings and robots. Did you see that? So हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रेन और हार्ट, जिसकी मदद से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शंस देता है हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं. जो हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है सारे ब्लड को और पूरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ब्लड सर्कुलेशन करवाता है. ब्रेन हमारा सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाता है हमारे बॉडी पार्ट से. सो ब्रेन एंड हार्ट इज इंपॉर्टेंट. सो सिमिलरली in robot, Arduino is the brain of robots. Arduino is a microcontroller जो कि सिमिलर काम करता है जैसे ह्यूमन बींग्स में ब्रेन काम करता है. इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाता है पूरे रोबोट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस को भेजता है. सारी स्पेसिफिकेशन जो हमें चाहिए वो आर्डिनो के अंदर हम सेट करते हैं और वो कनेक्ट रहता है पूरे से. तो दैट्स इज अ आर्डिनो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव हैंड्स एंड लेग्स. Human beings have hands and legs for movement. So similarly, robots have motor driver. Its name suggests that motor driver, मोटर को ड्राइव करने वाला, and this is for movement. मोटर को अगर ड्राइव करेंगे, ये मोटर ड्राइवर पूरे मोटर्स को सप्लाई पहुंचाता है और सारी मोटर्स मूवमेंट्स के लिए रेडी रहती हैं, whether it is moving forward, backward, left or right. Easy. Now senses, we have senses, eyes, ears and touch senses, taste senses. So similarly, robots have all the senses like ultrasonic sensor for detecting the object like our eyes, temperature sensors, water sensor, humidity sensors and more senses. So now moving forward, veins and arteries. We have veins and arteries for blood circulation. Similarly, jumping wire do the same in robots. Jumping wire is a connecting wire with the every components of the robots like these. These are the jumping wires connected to the every component of the robot. Now moving forward, blood is also important, very important in our body. So coding is very important in the robots. With the help of coding, the robots are gonna work because in coding हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि वेदर क्या काम करना चाहिए. यूजर डिफाइंड रहता है, यूजर को क्या चाहिए, क्या काम करवाना है. जैसे कि आपने देखा होगा हमारी कार में पार्किंग सेंसर्स होते हैं, तो जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आता है पार्किंग सेंसर्स आर बीपिंग, वो अलर्ट करते हैं कि ऑब्स्टेकल आ रहा है. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोबोटिक्स कंपोनेंट्स लाइक सेंसर्स. सो रोबोट्स आर एक्चुअली connected with the human beings. So why these robots are made for? हमने रोबोट्स को क्यों बनाया है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमने रोबोट्स को इसलिए बनाया ताकि वो हमारा काम इजी कर सके, वर्क को एफर्टलेसली कर सके. नाउ रोबोट्स इज अ प्योर रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बींग्स, मींस सिमिलर है बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के. फिर स्पीड एंड प्रिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस के काम में कभी कभी स्पीड एंड प्रिसीजन नहीं आ पाती. हम लिमिटेड रहते हैं हमारी एनर्जी से, बट रोबोट्स को जितनी पावर देते जाओगे वो उतना काम करता जाएगा और स्पीड से, एक्यूरेसी से जो हमने उसको डिफाइन करा हुआ है. एंड थर्ड टर्म इज एक्यूरेसी. सो एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नो सैलरी, दे डू नॉट
वांट एनी सैलरी, नो हॉलीडेज, 24/7 आप काम करवा सकते हैं। ये अडेप्टेबल होते हैं नेचर के लिए। सो फिफ्थ इज अडेप्टिव टू नेचर, जो कि यूजर डिफाइंड रहता है, ताकि या फिर आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करवाना है रोबोट से, या फिर आपको सेंसेस उसके सारे कंपोनेंट्स हमारे कार के सेंसर में लगाना है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंसर में लगाना है, आपको घरों में लगाना है कि आप फोन से स्मार्टली यूज कर सके सारे लाइटनिंग को या फिर आपके डोर्स को। सो दीज आर द रोबोट्स। नाउ आवर मोटो इज इनोवेट, क्रिएट एंड इनिशिएट। इनोवेट मीन्स आप इनोवेट करिए, अपने आइडियाज को सोचिए, इमेजिन करिए, फिर उसको क्रिएट करिए, उसको एक्चुअल वर्ल्ड में लाइए, फिर उसको इनिशिएट कीजिए और उसको बनाइए खुद से। तो दैट्स आवर मोटो। Now moving forward, these are the course detail which we offer to the students. So number 1 is line follower robot. Means in simple word, जो लाइन को फॉलो करे, मीन्स एक ब्लैक लाइन होगी जिसको हमारा रोबोट फॉलो करेगा। ये इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट्स में। तो इन फ्यूचर अगर बच्चा ये लाइन फॉलोवर रोबोट बनाना आज सीख जाता है, मे बी वो 6th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, तो वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एक रोबोट बनाना, एक छोटा रोबोट बनाना जो कि आगे जाके हमारी इंडस्ट्री में काम करे, वो इतना बड़े प्रोटोटाइप बनाना, वर्किंग मॉडल्स बनाना, तो वो हेल्प करेगा फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसको किस प्लेटफॉर्म पे रहना है। सो सेकंड वन इज एंड्रॉइड कंट्रोल रोबोट, मींस जो कि हमारे फोन से कनेक्ट होके चल सके। जैसे कि आपने रिमोट कंट्रोल कार देखी होगी जिसके लिए रिमोट जरूरत होती है, बट इन दिस हम अपने हमारे मोबाइल से हम कंट्रोल करके चला सकते हैं। जैसे कि ये दिस इज द एंड्रॉइड कंट्रोल रोबोट, स्मॉल है, दिस इज द बैटरी, टायर्स, मोटर्स, एंड इन दिस Arduino motor driver that we earlier said that Arduino is the brain, motor driver is for driving the motors, and Bluetooth is for connectivity from the mobiles and the robot. Now moving forward, obstacle avoiding robot. An obstacle means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने आ रहा है, that is the obstacle, and avoiding means उसको अवॉइड करना। कोई भी ऑब्स्टेकल आपके सामने आया उसको देखकर हम अवॉइड कर देते हैं। ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं। रोबोट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। दीज आर द अल्ट्रासोनिक सेंसर, दिस इज द येलो वन। तो ये क्या करता है? एक अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करता है जो कि टकरा के और बैक आ जाती है, रिवर्स बैक होती है, और ये इसको सेंस कर लेता है और सेंस करता है कि कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे। और दीज आर द Arduino motor driver actually set, already set, and these are the batteries, tires, 4 tires for more stiffness and more roughness. So this is the actual model, and this is also working. Now moving forward, home automation. Home automation means building our home smart, means आप फोन से कंट्रोल कर सकते हो सारी लाइटनिंग को, सारे अप्लायंसेस को, चाहे वो हमारे फैन हो, चाहे हमारी वो लाइटनिंग हो, चाहे स्विचेस हो, सब हम अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड होम ऑटोमेशन। सो वी हैव आल्सो R&D डिपार्टमेंट विद many members which actually working on the sanitizing robot। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे कोरोना में, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें हम सैनिटाइज कर रहे हैं हर जगह जाके, पर वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो उसकी जान को बचाने के लिए हम ऐसा रोबोट बना सकते हैं, जैसे कि चाइना ने बनाया, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो हम ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो कि सैनिटाइज करे हर जगह जाके। जैसे कि इन दोनों रोबोट को हम एक साथ मिला दें, जो कि मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाए और ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर दे, तो ये कितना अच्छा एरियाज में जाके अपने आप सैनिटाइज कर सकता है। और इसके ऊपर एक सैनिटाइजर गन लगा दे तो ऑब्वियसली ये अपने आप सैनिटाइज करेगा। सो हमने इसको नाम दिया है ब्रह्मबोट। ब्रह्मबोट इसलिए नाम दिया क्योंकि ब्रह्मा के पास हमारे सारी शक्ति होती थी, सो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, so that's why ब्रह्मबोट। now blind stick for blind persons, कि blind stick ये काम करे कि ब्लाइंड पर्सन को पहले ही इंडिकेट कर दे कि सामने कुछ आ गया है तो वो रुक जाए, या फिर कितनी सेंटीमीटर या कितने उस पे है तो वो बीप उसके हिसाब से करे, तो हमें पता लग जाए कि वो कितना ऊंचा है, या फिर एक ब्रिक तो नहीं है जिसकी वजह से वो ब्रिक से ही वो तो पार कर सकता है पर रास्ता चेंज ना करना पड़े, तो वो हाइट एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो दिस इज फॉर ब्लाइंड स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्संस, दैट विल बी वेरी वेरी इनिशियल। एंड ड्रोन्स, drones are not normal drones, these are for the packaging and supplies drones. And last one is defender, prevent bikers from accident. Meanwhile, जैसे कि आपने देखा होगा, when we turn the bikes actually slip हो जाती है बाइक्स टर्निंग मोड्स पे, तो वो कैसे प्रिवेंट करे?
तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे बाइक जैसे ही टर्न हो और वो स्लिप करने की कंडीशन में हो, अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको सेंस कर ले कि वो रोड से कितनी दूरी पर है। जैसे ही वो लिमिटेड दूरी पर आ जाए तो अपने आप ही एयरबैग या फिर कुछ भी एयरबैग्स हो, कोई भी अप्लायंसेस हो, वो अपने आप खुल जाए और उसको सेव कर ले, प्रिवेंट कर ले एक्सीडेंट से। सो दीज आर द कोर्स डिटेल दैट वी ऑफर द स्टूडेंट, that would be very beneficial for the students जो कि हमारे कोर्स अटेंड करेंगे, जो कि हमारा कोर्स करेंगे। और वेरी मिनिमल मतलब मिनिमल से भी मिनिमल रुपीज़ होंगे, मिनिमल फीस स्ट्रक्चर है हमारे पास, बहुत ही कम फीस होगी बच्चों के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाए। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फाइनेंशियली अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमारा कोर्स सबके लिए है और ये सबको करना होगा, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर इज मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्यूचर मैकाट्रॉनिक्स ही है। आने वाले टाइम पे सब इलेक्ट्रिकल होने वाला है, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सीएस सबको एक साथ जोड़ता है रोबोट। कोडिंग सीएस करता है, मैकेनिकल उसके चेसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सारे वायर्स एंड जो भी सप्लाई हमें देनी है। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु अटेंडिंग आवर कोर्स। सो दैट्स हाँ now we are talking about Android control robot. So what is Android control robot? Android means जो कि मोबाइल से कनेक्ट होके चल सके। जैसे कि आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल कार्स में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो रिमोट कंट्रोल कार्स कैसे चलती है रिमोट से। तो हमने ये देखा कि रिमोट्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं या फिर मॉइस्चर आ जाता है। हमारा मोबाइल सबसे यूजफुल क्या है, हमारा मोबाइल। हम आजकल क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा, मोबाइल के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है आजकल। तो हमने सोचा जब मोबाइल ही इतना हमारे लिए वैल्यूएबल है और प्रायोरिटी में सबसे आगे आता है, तो हम प्रायोरिटी को ही सबसे अच्छा क्यों ना बनाते बच्चों के लिए। तो हमने सोचा कि वो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमने सोचा मोबाइल से ही कनेक्ट कर दें। तो वो किसकी मदद से हो सकता है, हमारे मोबाइल में होता है ब्लूटूथ, होता है सबके मोबाइल में होता है। सो इस मोबाइल में भी हमने एक लगाया है ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसकी मदद से हम कनेक्ट हो सकते हैं मोबाइल से। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज parts of this robot. Number one is Arduino. I already said that Arduino is a microcontroller or a brain in simple word. So this is the Arduino that you can see that this is the Arduino with multi pins, जो कि पिंस कनेक्ट हो सकती हैं दूसरे कंपोनेंट से, एंड ये इंस्ट्रक्शंस देगा दूसरे कंपोनेंट को क्या काम करना है, और वो जो दूसरे कंपोनेंट है वो मोटर्स को सप्लाई देंगे, जिससे कि हमारा रोबोट चल सकता है। और इससे ही हमारे सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, चाहे वो मोटर ड्राइवर हो, चाहे वो ब्लूटूथ मॉड्यूल हो, चाहे वो हमारी लाइट्स हो, सब कुछ इससे ही अटैच रहता है। सो इन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मोटर ड्राइवर। हु ड्राइव्स द मोटर, simple, who drives the motor driver. This is the actually motor driver L29 3D modified version, and this is the pins, and this is for battery connections, and this is for motors connection. Now we are talking about Bluetooth module. What is Bluetooth module? Simple, Bluetooth connectivity for the Android mobile. This is the Bluetooth module which connects to the Android mobile and is connected with the jumping wires which connected to the Arduino. It's all about connection, like brain connected to whole our body. Similarly, in Arduino is connected to the whole parts of the robots. So now motors, batteries, wires, like motors चाहिए, हमारे legs चाहिए, हमारे हाथ चाहिए हमें चलने के लिए, तो meanwhile रोबोट को भी मोटर्स चाहिए आगे चलने के लिए, बैटरीज हमें एनर्जी चाहिए, रोबोट्स को भी एनर्जी चाहिए, बैटरी से आएगी, वायर्स, वेन्स, ब्लड सब इसमें से जा रहा है, तो वायर्स भी चाहिए हमें कनेक्ट के लिए, जिसको हम जंपिंग वायर कहते हैं। नाउ चेसिस इज द स्ट्रक्चर, स्केलेटन हमारा, चेसिस इसका स्केलेटन। नाउ एंड्रॉइड ऐप, नाउ दिस इज द एंड्रॉइड ऐप फॉर द कनेक्टिंग विद द रोबोट। सो दिस इज अवेलेबल इन द गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। दिस इज द एंड्रॉइड कार 1 डे कोड, जिससे कि सबसे ईजीएस्ट वे है कनेक्ट होने का। नाउ जैसे ही हमने एंड्रॉइड ऐप से कनेक्ट कर लिया और ब्लूटूथ ऑन किया हमने अपने मोबाइल का, सो इसका भी ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दिस इज द लाइटनिंग शोज दैट ही इज रेडी टू स्मैश एंड रेडी टू परफॉर्म। सो ब्लूटूथ ऑल्सो ब्लिंकिंग, यू कैन सी ब्लूटूथ ऑल्सो ब्लिंकिंग, एंड motor driver also tells yellow and red that it is ready, and Arduino also tells that it is ready to perform with the yellow light. So
That's how we connect with the mobile. This is all about Android control robot which can be performed with our mobiles. So it is very easy. अगर आज हम ये बनाते हैं, इवन 6 क्लास का बच्चा या 10 क्लास का बच्चा या 12 क्लास का बच्चा अगर इसको बनाता है, तो मीनवाइल आप ये सोच सकते हैं कि वो इंजीनियरिंग लाइफ में जाके वो कितने अच्छे एक्चुअल कार बना सकता है. इलेक्ट्रिकल का ज़माना आने वाला है, तो वो एक्चुअल कार बना सकता है कि वो अपने एक पैड से, एक स्क्रीन से कंट्रोल कर सके, उसको स्टीयरिंग की जरूरत ही ना हो. तो वो ऐसा हम कर सकते हैं इससे. दिस इज द, जैसे कहते हैं ना, एक स्टेप जरूरी होता है हमें फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल. दिस इज द पिलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे एक बिल्डिंग्स को खड़े करने के लिए, हमारे एक होम को खड़े करने के लिए. तो वही पिलर्स ये है जिससे की मदद से हम काम कर सकते हैं और जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि हमें किस लाइन में जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है. Now we are talking about obstacle avoiding robot. This is a very easiest robot and very beneficial and very important robot. And you can see whenever you drive a car, when you switch mode to the parking. So जब आप पार्क करते हैं गाड़ी, कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आता है तो वो बीप साउंड करता है. क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द सेंसर. तो दैट component is used in the car. So we use in this robot that avoid the obstacle, means avoiding the obstacle, that is obstacle avoiding robot. और वो avoid किससे करता है? This ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor means, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर. नहीं, अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली आया है बैट से, चमगादड़ों से. जैसे कि आपने सोचा होगा कि चमगादड़ कैसे रात में शिकार करते हैं या फिर रात में जाते हैं. कैसे जाते हैं? वो इको साउंड देते हैं अपने टंग से इको साउंड जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव जाती है और जितना दूर ऑब्स्टेकल है उससे टकरा के वापस आती है और वो सेंस कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है. तो सिमिलरली साइंटिस्टों ने ये सोचा कि यार ऐसा हम बना क्यों नहीं सकते. तो अल्ट्रासोनिक सेंसर सेम वही काम करता है. इससे अल्ट्रासोनिक रेज जाएंगी, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी. तो ये दूसरा सेंस कर लेगा कि कितनी डिस्टेंस पर है और कितनी डिस्टेंस पर हमें रुकना है. वो डिफाइन होता है कोडिंग में. जैसे कि मैंने बताया कोडिंग इज इंपॉर्टेंट. तो वो कोडिंग में डिफाइन होता है कि इस रोबोट को किस डिस्टेंस पे रुकना है. जैसे कि हमारी आंखें देख लेती हैं, हमारी आइज देख लेती है कितने डिस्टेंस पे कुछ वॉल आ रही है या फिर कार आ रही है, तो हम ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं. तो सेम ये ह्यूमन बीइंग्स इज इक्वल टू रोबोट. सो इट इज अ पॉसिबल रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ आर्डिनो, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ. आर्डिनो ब्रेन है, तो हर जगह ब्रेन तो होना ही है. Next, motor driver who drives the motor, battery, wheels and 4 wheels for what? For stiffness and roughness. कि ज़्यादा slopes पे चढ़ सके, ज़्यादा difficult task कर सके. तो this is for 4. And motors are gear motors which gives this maximum torque to drive on the slopes. So now moving forward, why it is important? Obstacle avoiding is important when you are on the automatic drive mode in Tesla, you also favorable that Tesla using these type of technologies की आप आराम से सो जाइए और कार्स अपने आप अपना लाइंस में चलती रहेंगी. तो इवन एक सडनली कोई कार आती है तो वो ऑब्स्टेकल क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है और अवॉइड करता है उसको. तो राइट लेन में और लेफ्ट लेन में आराम से जा सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो दैट टेक्नोलॉजी, गो दैट प्लेटफॉर्म. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म. आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. तो बड़ी चीज़ें हम हमेशा स्टार्ट करते हैं छोटी चीज़ों से सीखने के लिए. तो हम सेंटेंस कब बनाना सीखते हैं? जब हमें लेटर्स आ जाते हैं. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. कैसे हम बनाते हैं? जब हमें लेटर्स आते हैं. तो ऐसे ही ये है, अगर आपको ये रोबोट बनाना आ गया तो आप वो भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं. और कैसे सीखेंगे? जब आप ये कोर्स अटेंड करेंगे और आप ये सीख सकते हैं विद मिनिमल फी. सो दिस इज द ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट जो कि आपके लिए प्लेटफॉर्म देता है कि आप इंडस्ट्रीज़ में जाके ये बना सके या फिर आपको कहीं भी जाना हो, आप खुद की कार में क्यों ना हो, आप इसको लगाइए और ये डिटेक्ट कर लेगा और कनेक्ट कर दीजिए आपकी रियर्स और फ्रंट व्हील मोटर्स पे. ये ऑटोमेटिकली रोक सकता है. तो ये बहुत सारी जगहों पे बेनिफिशियल है. आप अपने साइकिल्स में लगा सकते हैं, आप अपनी बाइक्स में लगा सकते हैं. तो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी परसुइंग engineering or in the 12th or 10th in any class. So this is all about obstacle avoiding robot.
So this is the future scope and innovation that we are actually working on it, our R&D department. As the pandemic of COVID-19, the robots can be good gesture of sanitizing hands and zero touch. So this is we काम कर रहे हैं हम इस पे. और नेक्स्ट इज वैक्यूम क्लीनर, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर्स मींस अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाइए और अपने घर में छोड़ दीजिए, कहीं भी ये सफाई करके आ जाएगा, कोई भी वॉल पे ये कोलिजन नहीं करेगा. सो वेरी इजी प्रोसेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लॉजिस्टिक मींस आप अपना एक ड्रोन या रोबोट बनाइए, वो उसमें आप फीड करिए कि आपको जाना कहाँ है. तो आप कोडिंग से फीड कर सकते हैं, तो ये वहीं जाके सप्लाई दे सकता है. नाउ गार्डनिंग, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग लगाइए और गार्डनिंग को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि वो इसी एरिया में रन करता रहे, जैसे कि लाइन फॉलोवर रोबोट. तो दिस इज अ मैक्सिमम मैनी नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच कैन बी मेड फॉर दीज रोबोट्स दैट वी एक्चुअली made teach you in these courses. So now moving forward, this is the conclusion that what we actually think about these. Now thank you, and any question do you have, if you have any query, you will free to ask. No hesitation, please आप आस्क कर सकते हैं कोई भी चीज़. आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों सीखें, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, क्यों सीखना चाहिए आपको. बट मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आप ये स्टेप लेते हैं, आप इस कोर्स को सीखने के लिए ईगर हैं, आपको कुछ लाइफ में सही करना है कि या टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ करना है, तो आप ये सोचिए ना, इसमें 4 ब्रांचेस आ जाती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, मैनी कंपोनेंट्स. आप एक बार इस कहते हैं ना इस समुद्र में घुसिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें. ये लिमिटेड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है. बहुत सारे कंपोनेंट्स में आप इनोवेट करिए, जैसा हमारा मोटो है, इनोवेट, क्रिएट एंड इनिशिएट. आप इनोवेट करिए, अपने आइडियाज़ को घुमाइए. आप जैसे सोचते हैं कि यार मैं घर को कैसे स्मार्टली कर सकूँ, तो होम ऑटोमेशन से कर सकते हैं. यार मैं अपनी बाइक्स को कैसे स्मार्ट कर सकूँ, तो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग से कर सकते हैं, एंड्रॉयड कंट्रोल से कर सकते हैं. यार मैं कैसे अपने घर में जो वैक्यूम क्लीनर है सफाई कैसे करूँ, पोछा बनाऊँ, तो ऐसा पोछा बनाऊँ कि वो अपने आप डिटेक्ट कर ले, या फिर हमें लाइन फ्लोर्स पे कवर कर दो और उसी लाइन पे वो क्लीन कर दे हमारा हाउस. तो कितनी सारी चीज़ें, लाइक हमने डस्टबिन बनाया था एक, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया था, जैसे ही कोई पर्सन उसके सामने वेव करता है तो अपने आप डस्टबिन ओपन हो जाता है. तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. तो कैसे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और सीखें इन सारी चीज़ों को. और ये सच में और उन बच्चों के लिए फ्री है बिल्कुल जो फाइनेंशियली एबल नहीं है ये कोर्स अडॉप्ट करने के लिए, तो वो सब बच्चों के लिए फ्री है. जो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ फाइनेंशियली थोड़ा सही है, तो उनके लिए उनके हिसाब से हमने फीस स्ट्रक्चर रखा है जो कि बहुत ही मिनिमल है. ये हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं कि कैसे हमने सीखा है. तो ये आपको भी हमारा मतलब दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको भी समझाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं है उस हिसाब से, तो हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को कंप्लीट करना चाहते हैं. हम एक वे देना चाहते हैं कि हम जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं तो उसको कनेक्ट करें टेक्नोलॉजी से. So that's all about RC Academy. Our motto is innovate, create and initiate. तो प्लीज़ आप ये कोर्स अडॉप्ट कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप टेक्नोलॉजी बेस्ड और आप स्मार्ट नई चीज़ें एंड बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद इनोवेट कर सकते हैं. हमें बताइए, हम बहुत अच्छा लगेगा कि यार आपने ये इनोवेट किया, आपने ये सोचा है, तो उसको आइडिया को हम प्रैक्टिकलिटी में लाएंगे. तो दैट्स इज ऑल अबाउट RC Academy, जो हम इस पर काम करते हैं. सो थैंक यू एंड good day.